ACB conducted a secret verification into the allegation that Sajid Yusuf Bhatt, Chief Financial Officer, and Zahoor Ahmad Dar, Executive Engineer, both presently posted in Srinagar Smart Steel Limited, have accumulated assets disproportionate to their lawful known source of income. And suspects are also living lavish and luxurious lifestyle. Sajid Yusuf Bhatt owns a commercial property at Rambagh, Srinagar, having actual price significantly much higher than the value of the sale deed paid by the suspect. Besides, multiple bank accounts with suspicious transactions. In this way, public servant, namely Sajid Yusuf Bhatt, son of Muhammad Yusuf Bhatt, resident of Namlabal Pampur, at present Daulatabad Khan Yar, Srinagar, presently posted as Chief Financial Officer Srinagar Smart City Limited, has enriched himself illicitly by indulging in corrupt practices which attract commission of offences under section 13(1)(b) read with 13(2) of Prevention of Corruption Act 1988 for possession of these assets which are obviously disproportionate to his known sources of lawful income. Accordingly, FIR 1-2025 has been registered in police station ACB Srinagar. Zahoor Ahmad Dar owns a lavish multi-storied house at lane number 5, Ghalibabad, Shaltang, Srinagar. One sedan car, suspicious bank transactions in personal accounts and accounts of his spouse, acquisition of Benami properties and huge assets in forms of FDRs. In this way, public servant namely Zahoor Ahmad Dar, son of Abdul Razak Dar, resident of Takan Varipura, Srinagar, at present Ghalibabad, lane 5, Shaltang, Srinagar, presently posted as Executive Engineer, Srinagar Smart Steel Limited, has enriched himself illicitly by indulging in corrupt practices which prima facie attract commission of offence under section 3(1)(b) read with 13(2) of Prevention of Corruption Act 1988. Accordingly, case FIR number 2-2025 has been registered in police station ACB Srinagar. Search warrants were obtained from the Honorable Court of Law, and as I speak to you, searches are underway at different locations. I suppose at 7 different locations. Right now we are conducting search and investigation is in progress. अब मैं हिंदी और उर्दू में हिंदुस्तानी ज़बान में आपसे इसका जो है बताने की कोशिश करूँगा। हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो साजिद यूसुफ डार जो वहाँ पे फाइनेंशियल जो है एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहे हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और ज़हूर अहमद डार जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उन्होंने जो है गलत तरीके से इलीगली जो है करप्ट प्रैक्टिस से एक्यूमुलेट किया है डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स जो उनके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम के जो है विपरीत है, उससे ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंगली जो है हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हुई इसमें, तो जो एलिगेशंस जो इनके खिलाफ लगी थी वो सब्सटेंशिएट हुई। तो इसके बाद जो है वी हैव लॉन्च्ड एफआईआर अगेंस्ट बोथ दिस गवर्नमेंट बोथ दिस पब्लिक सर्वेंट्स। एफआईआर नंबर 1 और एफआईआर नंबर 2 जो पुलिस स्टेशन ACB श्रीनगर है, तो उसमें हमने जो है एफआईआर लगाया है और सर्च वारंट्स हमने जो है ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ से हासिल की है। एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद जो है 7 डिफरेंट लोकेशंस पे अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर्च चल रही है। इंडिविजुअल्स के खिलाफ जिनका मैंने नाम आपको यहाँ पे बता दिया, उनके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही थी और उसके फलस्वरूप जो है वो हमने एफआईआर लॉन्च किया है। अभी तक सर जो आपने सर्चेज वहाँ पर की हैं, क्या किसी तरह के कोई एविडेंसेस आपको मिल पाए हैं या कुछ कागजात जो हैं वो जब्त किए गए हैं अभी तक? चूँकि सर्चेज अभी चल रही है, तो जैसे ही उसकी डिटेल्स आएगी तो उसको फिर उसी अकॉर्डिंगली जो है उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो सर बहुत है सिटीजन कोई यहाँ का रहने वाला जो है कोई शिकायत करना चाहता है, ओबियसली हमारे पास माध्यम है जिसके थ्रू वो हमारे पास आ सकता है। उसका जो है नाम भी जाहिर नहीं होगा और उसमें जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी क्वेश्चन सर मैं श्रीनगर से सर जिस तरीके से आज अपनी 2 लोकेशंस पे रेड्स देखी ACB की तरफ से,
और नए ऐसी जगह पे हम भी गए सर कवर करने के लिए। तो क्या कुछ आपने साइट से कवर किया है, क्या उसकी जानकारी दे पाएंगे आप? दूसरा ये है कि क्वेश्चंस जो है उसमें रेस हो रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से कंप्लेन हुआ, आप कह रहे हैं कि कंप्लेन आई है हमारे पास और उसके बाद हमने ये सब एक्टिविटी की है, तो क्या हम ये आने वाले दिनों में इस वक्त आपको खुद भी पता है कि सर्चेस चल रहे हैं, तो जब तक वो कल्मिनेट नहीं होंगे तो तब तक शायद आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू रिवील व्हाट वी हैव एक्चुअली सीज्ड फ्रॉम दोज लोकेशंस। और जहाँ तक ये बात की फिलहाल जो हमारे पास कंप्लेंट आई है उसमें हमने कार्रवाई की है, तो आगे भी लॉ अपने हिसाब से काम करेगा, बिकॉज लीगली जो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है वो उसको जब वो प्रोब के दौरान वो किया जाता है उसके बाद ही जो है कार्रवाई अमल में लाई जाती है। मैं आपकी सही और पास में आ रहा हूं। मेरे एक सवाल आपसे है, अगर आप आपकी आवाज सुन रहे हो तो आप ये सर बताइए। जी मैं सुन रहा हूँ। आपके शुक्रिया सर। मेरा सवाल है, आज की जो सिपाही में आपकी कार्रवाई की बाद में ऐसा कुछ इसमें नहीं है बेटा। इसका रीजन ये है कि आप इस ऑफिस में कोई ऐसे जितने लोग हैं उनको उन्हें लगे भी पका, उनके ऐसे पके जो भी पका, सोने के बाद इसी श्रीनगर की या किसी भी कोर्ट से रिहाई हो जाएगी और फिर आपकी पीढ़ी की का मैक्सिमम मिनिमम 5-6 ईयर्स और 5-6 साल उसको लगेंगे। तो उसके बाद वो कोर्ट में केस जाते जाते आपके और 5-6 साल लगेंगे, तो 10 साल बाद ना तो सर्विस होगा, ना भी हो सकता है बहुत से लोग ऐसे जो जिंदा भी होते हैं और केस बंद हो जाता है। तो इस एसीपी की इस कार्रवाई का जो आम आदमी को कोई इज्जत नहीं होता। आम बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी एसीपी वाला राजपा करके कहते हैं बात जो हो जाएगी, कि प्राइस पोस्टिंग भी बहुत सी केसेस में होती है। कोई फंड है इस तरह की कार्रवाई का? स्पेशली आई वांट टू नो, क्योंकि 6 साल अगर पीढ़ी में लगते हैं और समझा वो शायद ये है कि काफ़ी लोगों के, मैं तो खैर अब रिपीट नहीं करूँगा सवाल, जवाब मेरा ये है कि कार्रवाई हमारा करना जो है वी डू इट एज पर लॉ। हमारा जो है काम होता है इसमें। देखिए ये जो सारा प्रोसेस है इसमें इन्वेस्टिगेशन से जुडिशल डिटर्मिनेशन तक एक लंबी प्रोसेस होती है। कानून जो है, कानून का काम थोड़ा लंबा होता है। हमारे पास इस तरह के काफ़ी सारे जो है मिसालें हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स में हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि लोगों के खिलाफ ठीक ठाक कार्रवाई हुई है।